Hello friends, welcome to the platform of Kautilya Academy. This is Akshay Kadam, and in today's session guys I am going to discuss with you a book published by Takshashila Publication Indore, and this is the book guys that we have published for MPPSC ethics syllabus. And about these books guys we will discuss in detail next 40 minutes ki what are the advantages and why you should refer this book. So guys, this book of Takshashila Publication for MPPSC is published by me. My name guys Akshay Dhansey Kadam. I have been ethics faculty for last 8 years. I have been teaching ethics for MPPSC as well as UPSC. And guys, along with this, the co-author of the book is Madhulika Kadam, my wife, who is an IRS officer in 2018 UPSC CSE batch selection, and she is now posted in Pune as a income tax assistant commissioner. So guys, in these books, before going in detail what we are going to study about advantages and so on, what we have discussed, the syllabus covered, everything, I would like to tell you one good point about this book is that guys, MPPSC ethics, MPPSC exam that was got conducted last year, mains exam few months back, and in that exam, in MPPSC ethics paper, entire syllabus questions came from my book. This book published by Takshashila Publication, except one question which was on Tulsidas ji, Swatantra Suhai. Those who know or gone through the paper, they might be knowing. Other than that guys, and every question was there in the book. Okay, most of my students who referred this book exclusively contacted me thanking that everything got covered in the book itself. So let's see guys what we are going to discuss in this book. Okay, about technical details of the book, where it will be available, where you can purchase it, I will discuss with you in the end. So guys, as you know, UPSC's MPPSC's syllabus, okay, unit 1 exclusively focuses on your philosopher, thinkers and social reformers. Most of the philosopher thinkers that are discussed or given in the syllabus are your Socrates, Plato, Aristotle, Mahavira, Buddha, Acharya Shankar, Charvak, Guru Nanak, Kabir, etc. Along with that guys, some other philosophers are Tulsidas, Rabindranath Tagore, Rajaram Mohan Roy, Savitribai Phule, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Maharshi Arvind and Sarvapalli Radhakrishnan. So guys, in this book I have covered all these philosophers in detail, and lot of guys factual details about these philosophers you will get in any book. But advantage here is guys that in this book I have not only discussed what are the contributions of those philosophers, but along with this guys, in the book I have given quite a conceptual understanding of all these philosophers. Okay, so guys, now we will go what we have covered in this book. So guys, we will go unit by unit, and the first unit of your MPPSC ethics syllabus is philosopher, thinkers and social worker and reformers. The thinkers that are given in the syllabus are Socrates, Plato, Aristotle, Mahavira, Buddha, Acharya Shankar, Charvak, Guru Nanak, Kabir. And after that, Tulsidas, Rabindranath Tagore, Rajaram Mohan Roy, Savitribai Phule, Swami Dayanand Saraswati, Swami Vivekanand, Maharshi Arvind and Sarvapalli Radhakrishnan. So guys, in this book, whatever this syllabus that philosopher that are mentioned in syllabus, lot of facts about this philosopher you will get anywhere. Okay, but what is the advantage of this book guys, that along with lots of facts about this philosopher, I have discussed all this philosopher in very much conceptual detail. Because in your syllabus, they are not only asking 2 marker questions, okay, which is generally MPPSC students try to focus on facts, but along with that guys, in new syllabus they are going to ask you 20 marker question also and lot of 5 marker questions also. So you should be able to solve those questions. आपको काफ़ी अच्छे से आंसर करने को आए, इसलिए I have discussed all this philosopher in a very much conceptual way. You will get very good conceptual understanding of all this philosopher. For example guys, just to give you idea, अब ये जो सारे philosophers है उसमें guys महावीरा और बुद्धा. Okay, most of the people don't understand how Mahavira differs from Buddha. उनके दोनों में क्या क्या तार्किक differences थे, technical understandings थी. Okay, so complete detailed analysis of Buddha's theory, Mahavira's theory, how they differ. Just to give you one simple example, कि Jainism में non-veg eating is not at all allowed, बिल्कुल allowed नहीं था. But Buddhism में non-veg eating was allowed, only animal actively नहीं मारना चाहिए, active killing is not allowed. So ऐसे जो बहुत तार्किक differences थे दोनों में, वो सारे मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किए. So whatever question comes, okay, on those philosopher, you will be able to answer in very much detail. और उसके अलावा उनके बहुत छोटे छोटे concepts भी, like बुद्धा का मिडल पाथ आइडिया हो, जैनिज्म का अनेकांतवाद आइडिया हो, okay, उसके अलावा बहुत सारे रत्नात्रय theory, 5 महाव्रतास, all details, whatever information that is needed about Buddha Mahavira, you will get in the book. So one thing I can guarantee you guys कि आपको इस book के अलावा you don't have to read anything extra.
Okay, whatever information will be here will be sufficient. Most of the question you will be very easily able to answer. Whether it will be 5 marker or reasoning based भी question है कोई 20 marker या factual questions, you will get all the data here. उसके अलावा गाइज बहुत सारे थिंकर्स है, आचार्य शंकर, कारवक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास एक्सेट्रा. तो गाइज आप कोई भी फिलोसोफर रैंडमली पढ़ने लगोगे कि तुलसीदास जी ने क्या क्या किया, कबीर जी ने क्या क्या किया, यू वोंट एबल टू गेट प्रॉपर सेंस. वो आप ठीक से उनकी आइडिया समझ नहीं पाओगे. तो इस बुक में मैंने सारे फिलोसोफर को एक प्रॉपर कैटेगरी में डिवाइड किया है. सो आपका आचार्य शंकर, गुरु नानक, कबीर एंड तुलसीदास, ये जो 4 फिलोसोफर है गाइज, दे ऑल बिलोंग टू वन कॉमन आइडिया जिसको हम इथिक्स में बोलते हैं वेदांतिक ट्रेडिशन. तो जस्ट टू गिव यू कि मैंने बुक में एक चार्ट डिस्कस किया आपके साथ टू गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसोफर्स कि जो हिंदुइज्म में आइडिया थी पुरुषार्थ की. तो हिंदुइज्म में 4 पुरुषार्थ थे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष. और मोक्ष पे ज्यादा फोकस किया हिंदुइज्म में. उसमें 2 फिलोसॉफीज थी, आस्तिक, नास्तिक. और आस्तिक में जो सांख्य, न्याय, योग, वैशिका, मीमांसा, वेदांता, ये जो फिलोसॉफीज थी, इस वेदांता जो फिलोसॉफी है, ये इस वेदांता के अंडर जितने फिलोसोफर आते थे, तो आपके सिलेबस के 4 फिलोसोफर ये वेदांता के ट्रेडिशन के. सो आपके आदि शंकराचार्य, गुरु नानक, तुलसीदास, कबीर, ये सारे वेदांता के फिलोसोफर है. तो वेदांता के बारे में जो भी कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी वो सारे फिलोसोफर में कॉमन होगी. तो आप एक कैटेगरी में उनको समझोगे, कंसेप्चुअली समझोगे, तो कोई भी फिलोसोफर पे क्वेश्चन आने दो, यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी वेल. सेम वे ये रहे वेदांता के आस्तिक फिलोसॉफी के फिलोसोफर, गुरु नानक, तुलसीदास, कबीर एटसेट्रा, आदि शंकराचार्य. उसी के साथ इंडिया में नास्तिक फिलोसॉफी भी थी जो भगवान में नहीं मानती थी. और वो कौन सी थी? बुद्धिज्म, जैनिज्म, कारवक एंड अजीविका. तो ये तीनों भी फिलोसोफर है आपके सिलेबस में. बुद्धा है, महावीरा है और कारवक जिनकी लोकायत फिलोसॉफी भी है. तो उनके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आस्तिक वालों का कहना क्या था, नास्तिक वालों का कहना क्या था, इफ यू अंडरस्टैंड दिस वेल देन आप बहुत इजीली ये कंसेप्चुअली समझ पाओगे उनको, उनके आर्ग्यूमेंट समझ पाओगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. एंड वॉट एवर क्वेश्चन कम्स यू विल बी वेरी इजीली एबल टू आंसर दैट. ओके, तो ये पार्ट पे मैंने ज्यादा फोकस किया है. सो यू विल गेट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिलोसोफर. सेम वे बाकी जो फिलोसोफर्स है, लाइक लेट्स से राजाराम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एंड महर्षि अरविंद. अब ये जो इंडिया के रिफॉर्मर्स है, ओके, या जो वर्ड है सोशल वर्कर्स, रिफॉर्म एटसेट्रा, तो इनमें भी गाइज आप कंसेप्चुअली पढ़ने पे ध्यान दो, तो दैट विल हेल्प यू इन अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि इसमें जो राजाराम मोहन राय थे, सावित्रीबाई फुले थी, महात्मा फुले वगैरह जो आप नाम सुनते हो हिस्ट्री में, ये रिफॉर्मर्स थे. ओके, वाइल स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद ये रिवाइवलिस्ट थे. तो रिफॉर्मिस्ट क्या होते हैं, रिवाइवलिस्ट क्या होते हैं, उनका कहना क्या था? तो रिफॉर्मिस्ट का कहना था कि ब्रिटिश आर मोर एडवांस देन अस, मॉडर्न देन अस, एंड वी शुड मॉडर्नाइज आवरसेल्फ. रिवाइवलिस्ट का कहना था कि इंडिया का कल्चर अच्छा है, वेदास बहुत अच्छे थे, सो वी शुड गो बैक टू वेदास और सो ऑन. तो टेक्निकली बहुत कोर डिफरेंस था उनमें. तो अगर वो आप ये कोर डिफरेंस समझोगे, रिफॉर्मिस्ट में क्या था, रिवाइवलिस्ट में क्या था, तो यू विल एबल टू आंसर एनी क्वेश्चन वेरी इजीली. ओके, तो राजाराम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले कम अंडर रिफॉर्मिस्ट कैटेगरी, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महर्षि अरविंद कम अंडर रिवाइवलिस्ट. इन सब के बारे में काफी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अलॉन्ग विद देयर फैक्ट्स आई हैव गिवन इन वेरी मच डिटेल्ड वे. उसके अलावा गाइज, नाउ इफ यू गो टू सेकेंड यूनिट, that is attitude chapter, aptitude chapter and emotional intelligence. So largely जो unit 2 है guys is focuses on a psychology part of the syllabus. Okay, तो psychology part में guys attitude की theories है, aptitude and emotional intelligence. अब guys attitude क्या है, aptitude क्या है, emotional intelligence क्या है, मैंने ये सबके theoretical part पे भी focus किया है along with बहुत सारा factual part जो theories mentioned है. अब guys ethics में if you want very good marks, क्योंकि मेरे जो यूपीएससी के स्टूडेंट है गाइज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ओके हैव स्कोर्ड 143 140 प्लस. मेरे वाइफ का हु इज ऑल्सो को ऑथर ऑफ दिस बुक, ओके, उनका भी इथिक्स 2018 का स्कोर वाज मोर देन 143. ओके, तो आप इतना स्कोर इथिक्स में हो सकता है. एमपीपीएससी के लिए 200 मार्क है, तो उसमें भी आप 120 130 स्कोर कर सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ द यूपीएससी स्टूडेंट्स गाइज हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, जो एमपीपीएससी के एग्जाम पैरेलली दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं. बिकॉज यूपीएससी को जो पढ़ाई करते हैं वो एमपीपीएससी में वो नॉलेज काफ़ी क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट करते हैं. सो आपको भी पता होगा कि जो आप एग्जाम का पैटर्न देख रहे हो, स्कोरिंग देख रहे हो, कि यूपीएससी के बच्चे जो एमपीपीएससी पैरेलल दे रहे हैं 120 130 मार्क्स ला ही रहे, और वो जो एज ला रहे हैं 20-30 मार्क के एक्स्ट्रा, वो उनको बहुत पे ऑफ करती है.
तो आप भी गाइज थोड़ा उसी लेवल पे पढ़ाई करो, उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई करो, तो आप भी वो एज ला पाओगे। और वो एज एक बार आ गई तो देन यू विल बी एबल टू स्कोर। ओके, वो एज आपको काफ़ी पे ऑफ करेगी बाकी किसी क्वेश्चन पेपर कोई डिफिकल्ट भी गया तो उसको कवर करने के लिए, क्योंकि आप ये काफ़ी आराम से कवर कर पाओगे। तो वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने दी है। अब मैं जब बोल रहा हूँ कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता क्या है, ओके, जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, ये एप्टीट्यूड आपकी यूनिट का नाम है, देन यू शुड फोकस कि एप्टीट्यूड होता क्या है, एग्जैक्टली ये टर्म होती क्या है। ओके, तो एप्टीट्यूड जो टर्म है गाइज, फॉर एग्जांपल आपको भी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट आपका सब्जेक्ट है, यूपीएससी में भी पेपर है, जीएस का GS1 पेपर एंड सीसैट पेपर, सेम है एमपीपीएससी में भी। तो जो एप्टीट्यूड का पेपर है मतलब आपका बेसिक पोटेंशियल चेक करता है। तो एप्टीट्यूड के पेपर में आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको कोई क्या कहते हैं उसे, इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो पूछते क्या है, बेसिक अरिथमेटिक, बेसिक रीजनिंग स्किल्स, बेसिक चीजें। तो आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कोई आर्ट्स के स्टूडेंट हो, 10th तक आपने जो पढ़ा है मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, यही इसी पे पेपर होगा, तो आपका एप्टीट्यूड स्किल मेजर करता है। सो एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स में मीनिंग है कि एप्टीट्यूड मीन्स योर बेसिक पोटेंशियल, सेम वे यहां पे एप्टीट्यूड का मीनिंग इथिक्स के पेपर में वही है कि आपको अगर आईएएस बनना है, डेप्यूटी कलेक्टर डिवाइस पे बनना है, तो आपके पास कौन से बेसिक एप्टीट्यूड की स्किल होनी चाहिए, एक कौन सी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स आपके अंदर होने चाहिए, कैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए दैट विल मेक यू गुड आईएएस ऑफिसर। तो जो बेसिक चीजें आपके पर्सनैलिटी में चाहिए, वैल्यूज आपके अंदर चाहिए, वही एप्टीट्यूड का मीनिंग है यहां पे। और वो कौन सी, खुद सिलेबस में उन्होंने मेंशन की है बहुत सारी, कि फाउंडेशनल वैल्यू आईएएस बनना है तो आपके अंदर होनी चाहिए। वो कौन सी है फिर, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, पार्टनर नॉन पार्टिसनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन, बहुत सारी वैल्यूज है। अब यहां पे उन्होंने सिर्फ 7-8 दी है, लेकिन इसके अलावा ओके आगे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ। तो आपके सिलेबस में जितनी मेंशन है वैल्यूज 8-10, ओके, उसके अलावा भी मैंने इतनी सारी वैल्यूज वहां पे ऐड की आपके सिलेबस में, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आए, कोई वैल्यू बचती नहीं है कि जो बुक में नहीं होगी। जो भी आज डिस्कशन चल रहा है इथिक्स के बारे में पूरी दुनिया में, ओके, जो भी वैल्यूज है हर वैल्यू को मैंने चार्ट में डाला है या इधर उधर आपको मिल ही जाएंगी। सारे कंसेप्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, ओके, डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, और उसके अलावा जो चार्ट में, फॉर एग्जांपल ये पूरा चार्ट है बुक में, ओके, तो कौन कौन सी वैल्यूज यहां पे, निष्काम कर्म, सेल्फलेसनेस, इंटीग्रिटी, इफिशियंसी, ऑब्जेक्टिविटी, इंपार्शियलिटी, प्रोबिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफेक्टिवनेस, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, परसिवरेंस, प्रोफेशनलिज्म, डेडिकेशन एंड कमिटमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, डायनामिज्म, एम्पैथी एंड कंपैशन, स्ट्रैटेजिक, इनोवेटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, रिस्पॉन्सिवनेस, फेयरनेस, सिविल सर्विस ओरिएंटेशन, ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। 20-25 वैल्यूज तो मैंने यहां चार्ट में ही दी है, और उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पे बहुत सारी वैल्यूज मिलेगी। अदर देन दिस बुक में जो वैल्यूज है गाइज, यू डोंट हैव टू रीड एनीथिंग एल्स, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा आराम से। अब जस्ट टू गिव यू अगेन गाइज कि ये जो वैल्यूज सिर्फ नाम पता होने से कोई फायदा नहीं होता, आपको उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है, जो आपको इस बुक में आराम से मिल जाएगा। जस्ट टू गिव एग्जांपल, इंटीग्रिटी। ये इंटीग्रिटी होता क्या है, बहुत बार स्टूडेंट्स को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। तो जैसे मैंने बोला कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड जो मैथमेटिक्स का एप्टीट्यूड है, यूपीएससी के लिए भी उसी लाइन पे एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट है। तो हम अगर इंटीग्रिटी की भी बात करते हैं गाइस, तो इंटीग्रिटी होता क्या है, मैथमेटिक्स में भी इंटीग्रिटी है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रिटी का कंसेप्ट मतलब क्या, कि आपका इंटीग्रल होल कैरेक्टर आपका होना चाहिए। जस्ट टू गिव यू एक सिंपल वे से इंटीग्रिटी का मीनिंग ये रहा, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, लैक ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रिटी सिंपली मीन्स ये रहा आपका इंटीग्रल कैरेक्टर। मतलब क्या, आपके कैरेक्टर में कोई लूपहोल नहीं है, आप जो सोचते हो, बोलते हो, करते हो वो सब करते हो, यू हैव कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी, ये होता है इंटीग्रिटी। और जो इथिक्स में इंटीग्रिटी का कंसेप्ट बोला जाता है, होलसमनेस ऑफ कैरेक्टर। मतलब क्या कि एक आईएएस ऑफिसर करप्शन तो करता नहीं, इसलिए सिर्फ उसको इंटीग्रल नहीं बोला जाएगा अगर वो गवर्नमेंट की कार अपने प्राइवेट यूज के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि लूपहोल है उसके कैरेक्टर में। आप एक सिटीजन इंटीग्रल कब हो, आप सिग्नल इसलिए फॉलो नहीं करते कि सिग्नल पे मामू खड़ा है, आप इसलिए सिग्नल फॉलो करते हो कि कोई हो ना हो, मामू हो ना हो, रात के 10 बजे हो, सुबह के 5 बजे हो, अगर सिग्नल चालू है तो मैं फॉलो करूंगा। यू डू समथिंग ऑल द टाइम कंसिस्टेंटली, दैट मीन्स इंटीग्रिटी।
तो ये टू द पॉइंट आपको मीनिंग पता होनी चाहिए हर कंसेप्ट के। आप इंटीग्रिटी पूछा और प्रोबिटी लिख रहे हो, अकाउंटेबिलिटी पूछा और ट्रांसपेरेंसी लिख रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको मार्क नहीं आएंगे। ऐसे टू द पॉइंट लिखोगे तब भी 140 प्लस मार्क मिलेंगे, और लिखोगे तो मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत हाई स्कोर करते हैं, तो वो मिलेंगे जरूर। लेकिन सिर्फ कंसेप्चुअली समझो कि हर चीज का ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। ओके, तो हर टर्म का मैंने काफी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दिया है आपके सिलेबस में। इंटीग्रिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, इम्पार्शियलिटी हो, प्रोबिटी हो। अब प्रोबिटी फॉर एग्जांपल, प्रोबिटी और इंटीग्रिटी में क्या फर्क होता है, हर चीज अच्छे से समझनी पड़ेगी आपको। तो इंटीग्रिटी मैंने जो बोला कि आप कोई चीज इंटीग्रिटी के साथ करते हो, मतलब हमेशा आपकी पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट है। जो गांधी जी ने बोला था इंटीग्रिटी के बारे में कि थॉट्स, वर्ड्स, डीड्स, एक्शंस, एवरीथिंग शुड बी सेम। बोल रहे हो, सोच रहे हो, कर रहे हो, हमेशा सेम होना चाहिए। प्रोबिटी उससे थोड़ा अलग है, प्रोबिटी बहुत हायर लेवल कॉन्सेप्ट आता है। कोई बंदा बहुत इंटीग्रल होगा, आईएएस ऑफिसर, कभी कुछ गलत काम नहीं करेगा, हमेशा बहुत कंसिस्टेंट होगा, लेकिन वो खुद करप्शन नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे कर रहे हैं और उनको रोक नहीं रहा, उसको पता है वहां पे करप्शन हो रहा है, विसल ब्लो नहीं कर रहा, तो आपके पास इंटीग्रिटी है, आपके पास प्रोबिटी नहीं। प्रोबिटी मतलब क्या कि आपने, इंटीग्रिटी मतलब क्या कि आपने जिंदगी में कभी कुछ खाया नहीं, लेकिन प्रोबिटी मतलब क्या कि आपने जिंदगी में किसी को खाने भी नहीं दिया, यू एक्टिवली डू समथिंग। ये होता है प्रोबिटी का मीनिंग। तो हर टर्म का अपना अपना एक मीनिंग है, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है। ओके, फॉर एग्जांपल एम्पैथी, ये एक वैल्यू है। कंपैशन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। एम्पैथी क्या होता है, आपको क्वेश्चन एम्पैथी पे पूछा और आप एक्सप्लेनेशन सिंपैथी के लिख रहे हो, नो, दोनों अलग आर्ग्यूमेंट्स है। सिंपैथी मींस फीलिंग ऑफ पीटी, कि देख तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। एम्पैथी इज नॉट दैट फीलिंग ऑफ पीटी, एम्पैथी उससे हायर लेवल अंडरस्टैंडिंग होता है कि जो तेरे साथ जो हुआ, आई रियली फील बैड बिकॉज जब मेरे साथ ऐसा हुआ था मुझे बहुत बुरा लगा था। व्हेन यू फील अदर पर्सन्स इमोशंस, उसको बोला जाता है एम्पैथी। इट्स अ हाईएस्ट लेवल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग। तो अगर क्वेश्चन एम्पैथी पे आता है तो आपकी पहली लाइन होनी चाहिए आंसर में, एम्पैथी मींस हाईएस्ट लेवल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, नॉट जस्ट फीलिंग ऑफ पीटी। फीलिंग ऑफ पीटी इज सिंपैथी। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। एंड दैट्स व्हाट, हर कंसेप्ट काफी टेक्निकली समझो, और मैंने बुक में वो काफी आपको ये टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने बुक में दिए गाइस, अदर देन दैट आपको कोई भी क्या कहते हैं उसे पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा रट्टा मारो एंड डू वेल इन एग्जाम। ओके, अब उसके बाद आते हैं एप्टीट्यूड का यूनिट मैंने डिस्कस किया, ये एप्टीट्यूड का डिस्कस किया, एटीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इसके बारे में। तो मैंने एटीट्यूड के चैप्टर में गाइस बहुत सारी चीजों पे फोकस किया है, कंटेंट, एलिमेंट्स, फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड, हम एटीट्यूड क्यों होल्ड करते हैं, एटीट्यूड के एबीसी मॉडल, कॉम्पोनेंशियल मॉडल क्या है, फंक्शनल थ्योरी ऑफ एटीट्यूड, उस पर डिस्कस किया है। एटीट्यूड कैसे चेंज किए जाते हैं, एटीट्यूड चेंज की थ्योरीज है, फॉर्मेशन की, चेंज की 13, 14, 15 थ्योरीज दी है मैंने गाइस एटीट्यूड चेंज की बस। तो एटीट्यूड कैसे फॉर्म होते हैं और चेंज होते हैं, अब वो थ्योरीज में गाइस आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, ओके, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट, बहुत सारी थ्योरीज है। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आता है कि एटीट्यूड चेंज पे 20 मार्कर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, तो कोई भी आप नाइव अंडरस्टैंडिंग लिखोगे कि किताबें पढ़ के एटीट्यूड चेंज हुआ मेरा, टीवी देख के एटीट्यूड चेंज हुआ, माँ बाप की वजह से एटीट्यूड चेंज हुआ, पनिशमेंट की वजह से एटीट्यूड चेंज हुआ, दिस इज, ये आंसर लिखोगे, नाइव आंसर है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़े बहुत मार्क मिल जाएंगे, 20 में से 5-6 मार्क दे देंगे वो। इफ यू वांट गुड मार्क्स, 20 मार्कर क्वेश्चन को 12, 13, 14 मार्क चाहिए, देन यू हैव टू राइट कोर थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड, जो साइकोलॉजी के पेपर में एस्टेब्लिश्ड है, वो सारी मैंने यहाँ पे दी है, काफी इजी है वो। ओके, सारी आप मगअप करो, अच्छे से पढ़ो और वो लिखो आंसर में। वो अगर 13 थ्योरीज के नाम लिखते हो आप, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ओके, मेयर एक्सपोजर इफेक्ट एटसेट्रा, ये कोर थ्योरीज का मेंशन करोगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी। ओके, अब इसके बहुत सारे मैंने इंटरेक्टिव एग्जांपल भी दिए कॉग्निटिव डिसोनेंस वगैरह के। फॉर एग्जांपल एक जो इंडियन गवर्नमेंट का वो एग्जांपल भी बुक में मैंने ऐड किया है कि एक पॉलिसी गवर्नमेंट की, कि लोगों के दिमाग में डिसोनेंस पैदा करो, एटीट्यूड अपने आप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने वो एक टीवी सीरियल भी देखी होगी नेटफ्लिक्स पे जो आती है पंचायत करके, उसमें जो स्लोगन ऐड किया है, 2 बच्चे मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर। अब उस पर काफी बवाल होता है, बट दिस इज एक्चुअली एटीट्यूड चेंज थ्योरी। ये सारे ऐसे मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए आपके बुक में। ओके, और एक स्लोगन गवर्नमेंट ने यूज किया था अभी कि एक लड़का माँ को बोलता है कि माँ कचरे वाला आया है, माँ उसको बोलती है बेटा वो कचरे वाला नहीं, कचरे वाले हम हैं, वो सफाई वाला है। दिस इज व्हाट डिसोनेंस थ्योरी। उस बच्चे के दिमाग में डिसोनेंस पैदा करो,
वो फिर आप खुद सोचेगा कि मैं कचरे वाला हूं, वो सफाई वाला है, और वो कचरा करना बंद कर देगा। ये कोर थ्योरीज है एटीट्यूड चेंज की, टेक्निकल थ्योरीज। आप ये लिखो तब मार्क मिलेंगे 20 में से 15-16, ना ही कुछ लिखोगे मार्क नहीं मिलेंगे। तो ये सारा डेटा आपको एटीट्यूड चेंज का वगैरह बहुत डिटेल में मिलेगा। पर्सुएसिव कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस के काफी टेक्निकल कॉन्सेप्ट मैंने डिफाइन किया है। स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस क्यों होल्ड करते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या, स्टीरियोटाइप बन जाते हैं तो उसको चेंज कैसे करना है, बहुत सारी उसकी भी थ्योरीज है। तो 20 मार्कर भी क्वेश्चन आए या 2 मार्कर डेफिनेशंस आए, कोई भी हो, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड। ओके, आपकी सारी नीड्स सेटिस्फाई हो जाएंगी। सेम है इमोशनल इंटेलिजेंस गाइस, इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन क्या, वो कैसे काम करता है, प्रोसेस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, वो कैसे बनता है, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कौन से कैरेक्टर आपके अंदर होने चाहिए टू बी ए इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। तो उसमें एम्पैथी, सोशल स्किल्स, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये 5 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप बनोगे इमोशनली इंटेलिजेंट। इसी को बोला जाता है कॉम्पोनेंशियल थ्योरी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो भी काफी डिटेल में मैंने दी है। और उसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज क्या है एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस पे, उसके 10-12 एग्जाम्पल दिए मैंने। आप मिलिट्री के सोल्जर हो, योगेंद्र यादव जैसे, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, इतनी गोलियां लगने के बाद इंजरी, इमोशनल इंटेलिजेंस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर्मी। पुलिसिंग में राइट्स वगैरह फेस करने पड़ते हैं, बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, यू नीड इमोशनल इंटेलिजेंस। को किसी लड़की का रेप हुआ है, कोई वायलेंस हुआ है, वो आपके पुलिस स्टेशन में आई है, हाउ यू शुड बिहेव सेंसिटिवली, इसलिए पुलिस को भी इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए कि उनके दर्द समझो, उनका पेन समझो। कहीं भी डिजास्टर हुआ है, जल्दी लोगों को रेस्क्यू करने जाओ, ट्रबल में होंगे। तो गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का होना। ओके, तो बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस मैंने दिए, एग्जांपल्स दिए, सीधे मगअप करो सारे एग्जांपल्स और आंसर में उतार दो, आपको कोई दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, एवरीथिंग इज देयर एज इट इज, सारा स्टडी करो। फिर मैंने बहुत सारे गाइस चार्ट्स भी दिए जो आपको बहुत आंसर राइटिंग में काम आएंगे, केस स्टडी स्पेशली अगर आता है उसके लिए भी, सॉल्यूशन के लिए, कि ये एटीट्यूड्स वगैरह कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपका जो ये टॉपिक है कि प्रेजुडिस स्टीरियोटाइप कहां से हम सीखते हैं, एटीट्यूड्स कहां से बनते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस कहां से डेवलप होता है। ओके, तो उसी के लिए ये चार्ट है एक्चुअली, कहां से हम ये सारी चीजें सीखते हैं। तो हमें फैमिली से सीखने को मिलती है, एजुकेशन सीखने को मिलती है, मीडिया, सोशल मीडिया, मूवीज, रोल मॉडल्स, टीवी, न्यूज़पेपर, उनसे हम सीखते हैं बहुत सारी चीजें। हम एटीट्यूड्स हमारे पीयर ग्रुप्स, स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स हो या बाकी कोई भी चीजें हो, पीयर ग्रुप से आती है। फिर आपके इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, वैल्यूज, ये हमें सोशलाइज करते हैं। फिर टेक्नोलॉजी से भी हमारी बहुत वैल्यूज फॉर्म होती है, एटीट्यूड्स फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखना, मिलिट्री में अब कोई तलवार घोड़े लेके लड़ाई नहीं की जाती, अब बटन दबाओ और मिसाइल निकल के काम करेगा। सो इसीलिए अब इंडिया की वैल्यू चेंज हो रही है और फीमेल्स भी फाइटर रोल में आ रही है, इसलिए नेवी में फीमेल फाइटर्स आ गई, आर्मी में फाइटर पायलट्स आ गई। सो टेक्नोलॉजी और वैल्यू एटीट्यूड का रिलेशन, सोसाइटी कल्चर कैसे हमारा एटीट्यूड बनाता है। उसके अलावा इतने फैक्टर्स है और भी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें चीज़ें बताता है क्या सही क्या गलत, अच्छे वैल्यूज़ कौन से, गलत वैल्यूज़ कौन सी, अच्छे एटीट्यूड्स कौन से, गलत एटीट्यूड्स कौन से। फिर आपका लीगल फैक्टर्स है, लॉज जो कंट्री के लॉज है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस क्या बता रहे हैं, क्या करवा रहे हैं हमसे, उससे हमारे एटीट्यूड्स बनते हैं। फिर आपका ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ज्योग्राफी, हमारे साथ हिस्ट्री में क्या हुआ, इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, ग्लोबलाइजेशन हमसे हम पे इंपैक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमारे एटीट्यूड चेंज हो रहे हैं। ओके, देन लार्जली इकोनॉमी वगैरह, हम कौन से क्लास को आप बिलोंग करते हो, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, उस हिसाब से आपके लाइक्स, डिसलाइक्स, एटीट्यूड सब फॉर्म होते हैं। ऑलमोस्ट 2 चार्ट में गए सिर्फ एटीट्यूड फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको, ओके, इस चार्ट पे 12 एक फैक्टर और इस चार्ट पे 12 एक फैक्टर, 25 एक फैक्टर दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आपको एक इंडिविजुअल फैक्टर पे कि पॉलिटिक्स का रोल क्या है एटीट्यूड फॉर्मेशन में, 5 मार्कर क्वेश्चन, तो भी आप आराम से आंसर कर पाओगे। 20 मार्कर भी क्वेश्चन आता है तो चार्ट बनाओ और एक एक पॉइंटर लिखो, आंसर हो गया, आपको बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे, बहुत डिटेल में आप लिखोगे, वो प्रेजेंटेशन भी आपका इंप्रूव होगा ऐसे चार्ट से, एंड यू विल एबल टू गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, उसके बाद गाइस बहुत सारे मैंने इंटरेक्टिव एग्जाम्पल भी दिए बुक में, क्योंकि साइकोलॉजी कंसेप्ट समझने के लिए बहुत क्या कहते हैं उसको, एक रियल लाइफ से हम अगर उनको जोड़ते हैं तो ज़्यादा एडवांटेज होता है, उसका ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉग्निटिव रेजोनेंस के एग्जाम्पल्स मैंने इंटरेक्टिव वे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐड भी किए। उसके बाद गाइस तीसरा यूनिट है
एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स पे ज़्यादा फोकस है, ह्यूमन नीड्स एंड मोटिवेशन, इथिक्स वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो सेकेंड यूनिट जो था वो ज़्यादा साइकोलॉजी बेस्ड था, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ये यूनिट जो है वो टोटली फोकसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, मोरल रीजनिंग साइड, जिसमें जो एलिमेंट्स है या सिलेबस के पार्ट है कि इथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो ये जो पार्ट है आपके यूनिट 2 में ओवरलैप भी हो रहा है थोड़ा बहुत। उसके बाद इथिकल रीजनिंग एंड मोरल डायलेमा, ये पार्ट क्या है आपको डिटेल में अभी बताता हूं मैं। कॉन्शियंस एज द सोर्स ऑफ इथिकल गाइडेंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट्स। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक लॉ है 1963 में बना हुआ सिविल सर्विसेज कोड ऑफ कंडक्ट रूल। तो वही है, डायरेक्टली वो लॉ आपको पढ़ना है और सारा आंसर में लिखना है। एंड ऑल्सो इंप्लीमेंटेशन ऑफ हायर वैल्यूज इन गवर्नेंस, कि एक गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस कैसे बनाएंगे, तो उसके भी कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, इस पे उनको एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन। तो हर एक पॉइंटर को हम देखते जाएंगे। फर्स्ट इज इथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस। तो मैंने पहले बोला है गाइस, इस यूनिट पे मैंने बहुत बात की है। ओके, बहुत सारे एलिमेंट्स इन गवर्नेंस दिए हैं ऑलरेडी। इसके अलावा जो चार्ट में नहीं है ऐसे भी बहुत सारे हैं, बुक में आपको मिलेंगे। इंटीग्रिटी पैक्ट क्या होता है, थर्ड पार्टी इथिक्स क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, देन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्क्रिशनरी पावर्स, फेयरनेस, जस्टिस, इक्विटी, राइट्स, बहुत ऐसी वैल्यूज है। ऑलमोस्ट आपको 50-60 एलिमेंट्स इन गवर्नेंस मिल जाएंगे पूरे बुक में। इसके अलावा एमपीपीएससी भी क्वेश्चन नहीं बना पाएगी। ओके, दैट यू शुड गारंटी। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है, अगर वो मेरे बुक में नहीं होगा, ओके, तो वो किसी भी बुक में आपका उसको हार्डली आंसर मिलेगा। दैट कैन गारंटी यू, इट्स वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, सारा कुछ कवर है यहाँ पे। देन इथिकल रीजनिंग एंड मोरल डायलेमा, ये बहुत बड़ा पार्ट है गाइस, भले वर्ड छोटा है, लार्ज पार्ट ऑफ बुक किसी पॉइंटर को कवर करता है। तो इथिकल रीजनिंग एंड मोरल डायलेमा। ओके, तो इथिकल रीजनिंग मोरल डायलेमा में गाइस आपके बहुत सारे थिंकर्स आ जाते हैं। ओके, अब ये जो मैंने बोला कि जस्ट गोइंग बैक लिटिल बिट, कि जो एलिमेंट्स इन गवर्नेंस की मैंने बात की थी, तो मैंने बोला कि इक्वालिटी, इक्विटी, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज है गवर्नेंस की। तो बहुत सारे मैंने ऐसे इजी इमेजेस भी डाली है जो आपको हेल्प करेगी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ओके, तो ये होता है इक्वालिटी, सेमनेस, हर किसी को सेम ट्रीट करो। इक्विटी का अगर कॉन्सेप्ट आता है तो मैंने पहले ही बोला है, हर चीज आपको टू द पॉइंट समझनी पड़ेगी। इक्वालिटी, इक्विटी सब कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी मीन्स हर किसी को सेम ट्रीट करो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल बोलता है, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लेकिन हमारी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो बोलते हैं, वो इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी मतलब क्या, कि अगर कोई पीछे है तो उसको मदद करो और आगे लाओ और सबको एक स्टेट पे लाओ, इक्वल स्टेट पे लाओ। ओके, सो इक्वालिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ऐसे बहुत सारे मैंने डायग्राम्स ऐड किए। ओके, हर जहां पे रिलीवेंट है, पॉसिबल है, सो यू विल अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स वेरी इजीली। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट यूनिट का पार्ट जो है कि इथिकल एलिमेंट्स इन गवर्नेंस, इथिकल रीजनिंग एंड मोरल डायलेमा। तो ये इथिकल रीजनिंग क्या होता है, मोरल डायलेमा क्या होता है। ओके, इसकी बहुत डिबेट है फिलॉसफी में, वो सारी डिबेट मैंने आपके सिलेबस में डाली है। तो पहले मैंने मेटा इथिक्स, इथिक्स को 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। वही ब्रांचेस आपके सिलेबस में एक वर्ड में डाली है कि इथिकल रीजनिंग एंड मोरल डायलेमा। तो इथिकल रीजनिंग कैसे किया जाता है, इसकी 3 ब्रांचेस है इथिक्स में, जिसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव इथिक्स, नॉर्मेटिव इथिक्स एंड मेटा इथिक्स। तो इसलिए बोल रहा हूं गाइस, ये टेक्निकल पार्ट है। क्वेश्चन आता है तो ये एक्सपेक्ट है, ये लिखो, तब आपको ज्यादा मार्क मिलेंगे। अब इधर उधर का कुछ नाइव लिखोगे, कुछ मार्क नहीं आएंगे। तो इथिक्स के जो 3 ब्रांचेस हैं, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव और मेटा। और मेटा इथिक्स में भी बहुत सारे रीजनिंग्स की ब्रांचेस हैं। अब मैं अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर में उसके डिटेल में नहीं जा सकता, बट एब्सोल्यूटिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म वर्सेस निहिलिज्म, सब्जेक्टिविज्म वर्सेस ऑब्जेक्टिविज्म, कल्चर वर्सेस इथिक्स, ये जो ब्रांचेस है, दीज आर द ब्रांचेस ऑफ मोरल रीजनिंग अंडर मेटा इथिक्स। एक ही ब्रांच है वो। ओके, अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ मोरल रीजनिंग, तो ये लिखना एक्सपेक्टेड है गाइस। एब्सोल्यूटिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म, सब्जेक्टिविज्म वर्सेस ऑब्जेक्टिविज्म। टर्म्स थोड़ी टेक्निकल है, तो अभी एक लाइन में मैं नहीं बता सकता उसको, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, जो बुक में आपको नोट्स मिलेंगे। वो जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन कि ये रीजनिंग क्या है, सब्जेक्टिविज्म वर्सेस ऑब्जेक्टिविज्म। इस रीजनिंग का मीनिंग यह है कि मोरालिटी, जो इथिकल रीजनिंग है, क्या इथिक्स ऑब्जेक्टिवली वैरी करते हैं, आइदर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 0 1, या इथिक्स सब्जेक्टिव होते हैं, डिग्रीज में वैरी करते हैं। इस पे बहुत डिबेट है फिलोसोफर के बीच में। मतलब क्या, कि झूठ बोलना, कभी भी झूठ मत बोलो और हमेशा सच बोलो,
मोरालिटी ऐसे चलती है या छोटा मोटा झूठ चलेगा, बड़ा झूठ नहीं बोलेंगे, डिग्रीज में वैरी करती है। अगर आप ये मानते हो कि मोरालिटी आइदर और चलती है, कभी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, गांधी जैसे, तो आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी में मानते हो। लेकिन आप बोलते हो चलो छोटा मोटा झूठ चलेगा, बड़ा झूठ नहीं बोल सकते, ओके, तो सब्जेक्टिव मोरालिटी मानते हो। अगर आपको लगता है करप्शन हमेशा गलत है, कभी करप्शन मत करो, रॉन्ग इज रॉन्ग, तो आप ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात कर रहे हो। लेकिन आपको लगता है छोटा मोटा करप्शन चल जाएगा, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे बड़े स्कैम नहीं करेंगे, इतना बड़ा गलत है, छोटा मोटा कर लो, तो आप सब्जेक्टिव मोरालिटी में मानते हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ मैंने ये कॉन्सेप्ट बताए। ये है मोरल रीजनिंग, मतलब मोरालिटी में क्या क्या लोगों के ओपिनियंस है। कुछ थिंकर्स के ओपिनियन है कि मोरालिटी डिग्री में वैरी करती है, कुछ के ओपिनियन है कि मोरालिटी क्या कहते हैं आइदर और में वैरी करती है। तो यही चीजें मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन की है। क्वेश्चन आए तो ये लिखना है आपको, आपका नाइव अंडरस्टैंडिंग नहीं मोरालिटी के बारे में। उसके बाद मोरल रीजनिंग में ये मेजर पार्ट है। नॉर्मेटिव एथिक्स में भी मोरल रीजनिंग बहुत और भी एक सेकेंड ब्रांच है मोरल रीजनिंग की, जिसमें आपका सारा सिलेबस डिवाइड होता है 4 ब्रांचेस ऑफ मोरल रीजनिंग, दैट इज वर्च्यू एथिक्स, टेलियोलॉजी और कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट एथिक्स, डिओंटोलॉजी एथिक्स और लिबरेटिज्म और राइट्स एथिक्स। तो आपकी जो केस स्टडी का जो सेपरेट यूनिट है गाइस, कोई भी आपको केस स्टडी आएगी सिलेबस में, तो एक चीज याद रखना, उस केस स्टडी का अगर आंसर करना है तो आपको ये पार्ट बहुत डिटेल में आना जरूरी है कि वो केस स्टडी में क्या सही क्या गलत। इसका आंसर गाइस आप आपके मन से नहीं लिख सकते, इसका आंसर आपको थिंकर्स के मन से लिखना है। थिंकर ने क्या बोला, क्या सही क्या गलत होगा। तो इस रीजन के लिए कौन से थिंकर क्या बोलेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए इथिक्स में 4 ब्रांचेस है, 4 ब्रांचेस ऑफ रीजनिंग है। इसी को बोला था कि केस स्टडी क्या है, आपका मोरल डायलेमा है, और वो मोरल डायलेमा कैसे सॉल्व करना। आपके टॉपिक का नाम क्या है, इथिकल रीजनिंग एंड मोरल डायलेमा। तो मोरल डायलेमा कैसे सॉल्व करना, इथिकल रीजनिंग करके। और इथिकल रीजनिंग कैसे किया जाता है, इसमें आप खुद को फिलोसोफर नहीं समझ सकते, ये रहे फिलोसोफर लोग जिनको समझ के आपको वो सॉल्व करनी है केस स्टडी। तो ये सिर्फ इस यूनिट का पार्ट नहीं है, ये आपकी यूनिट 5 केस स्टडी को भी कवर करता है, और इसलिए मैंने इस पार्ट पे बहुत ज्यादा डिटेल में फोकस किया है। ये अगर आप अच्छे से पढ़ लो बुक में से, तो केस स्टडी आप बहुत आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो फिर कौन से 4 ब्रांचेस है मोरल रीजनिंग के, एक वर्च्यू एथिक्स, और इसमें कौन कौन से थिंकर आप पढ़ते हैं, इसमें जो 3 थिंकर है गाइस वो आपके यूनिट 1 में ही कवर है। और एक्चुअली 5 थिंकर, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, बुद्धा, महावीरा, ये जो 5 थिंकर है ये वर्च्यू एथिक्स में आते हैं, ओके। देन एक है टेलियोलॉजी और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, इसके अंदर 4 थियरीज आती है, यूटिलिटरिज्म, इथिकल इगोइज्म, इथिकल अल्ट्रुइज्म, हेडोनिज्म। जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये जो थिंकर्स है जिनकी वजह से इंडिया में सती प्रैक्टिस बंद हुई, ये थिंकर्स गाइस आपके कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में आते हैं। देन तीसरा स्कूल है डिओंटोलॉजी। इस स्कूल में सबसे महान फिलोसोफर अगर किसी को माना जाता है इथिक्स के पेपर में, केस स्टडी सॉल्व करनी है जिस, तो सबसे ज्यादा जो काम आता है, दैट लीजेंडरी पर्सन इमैनुअल कांत, ओके। और ये जो इमैनुअल कांत है गाइस वो डिओंटोलॉजी के स्कूल का फाउंडर है, ओके। और उसके अलावा और 2 थिंकर्स आते हैं इसमें, एक है हमारे महात्मा गांधी एंड वन ऑफ द लीजेंडरी ऑफ इंडिया, ओके, लॉर्ड कृष्णा एंड भगवद गीता इथिक्स। इन स्कूल्स का कहना क्या था गाइस, ओके। तो डिओंटोलॉजी का कहना क्या है, इनका रीजनिंग क्या है कि कोई भी चीज सही या गलत कैसे डिसाइड करे, तो डिसाइड होता है आपकी ड्यूटीज से, इसलिए नाम है डिओंटोलॉजी। आपके कर्मास डिसाइड करते हैं क्या सही क्या गलत। तो अर्जुन को भगवद गीता में कृष्णा क्या बोल रहे थे कि तू लड़ाई नहीं करेगा और कल दुर्योधन राजा बनेगा, तो वो जो भी पाप करेगा उसका पाप, उस पापों के लिए पापी सिर्फ दुर्योधन नहीं होगा, तुम नहीं लड़ोगे तो तुम भी पापी होंगे, इसलिए तुम्हें लड़ना ही है और अपना क्षत्रिय धर्म करना ही है, दैट इज ड्यूटीज करनी ही है तुम्हें, नहीं करोगे तो पापी बन के मरोगे। तो निष्काम कर्म जो भगवद गीता इथिक्स बोलता है, ये डिओंटोलॉजी में आता है। गांधी भी वही बोल रहे थे, राइट मीन्स, और कांत भी वही बोल रहा था। लार्जली इथिक्स के पेपर में, ये केस स्टडी में ये थ्योरी काम आती है। अगर ये काम नहीं आती तो आपको यूटिलिटरियन थ्योरी यूज करनी है, ये नहीं आते तो एरिस्टोटल, प्लेटो के आइडियाज यूज करनी है। लेकिन इन सबके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो लास्ट थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग, दैट इज जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ राइट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, और आपको क्लास के नोट्स में भी मिल जाएगी उसकी इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपने इथिक्स में अलग से पढ़ोगे, लेकिन इसके बारे में आपने पहले पढ़ा होगा पॉलिटी के पेपर में, कॉन्स्टिट्यूशन में,
फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमारे इतने सुप्रीम है कि गवर्नमेंट भी अब हमारे राइट्स वायलेट नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इसी बात के लिए बनी है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करो। सुप्रीम कोर्ट हो या गवर्नमेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है, लेकिन फंडामेंटल राइट चेंज नहीं कर सकता। ये जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आए हैं वो वहां पे क्यों आए? क्योंकि उसके पहले 400 साल पहले एक थिंकर था जॉन लॉक, जिसने इनकी बात की, फंडामेंटल राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। अगर कोई भी ऐसी केस स्टडी है गाइज कि जिसमें ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं, तो आपको जॉन लॉक को यूज करके आंसर लिखना है। मतलब चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, किडनैपिंग, एब्डक्शन, फोर्स लेबर, बॉन्डेड लेबर, ऐसी कोई भी केस स्टडी आए, कोई थिंकर के बारे में सोचो ही मत। एक ही थिंकर है, उसके बारे में लिखना है। नोट्स में थिंकर के इस सेक्शन में आपको बहुत इंफॉर्मेशन दी है जॉन लॉक के बारे में, पढ़ो, उसकी आइडिया बहुत इजीली समझ में आएगी। और सारी केस स्टडी में सिर्फ जॉन लॉक लिखना है। तो आपको यह समझ में आया ना कि एक केस स्टडी में क्या प्रॉब्लम है। राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ड्यूटीज परफॉर्म नहीं हो रही, ओके, कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलेशन है, या कोई वैल्यूज का प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंगली इन चारों में से किसको आंसर में यूज करना, ये जिस दिन आपको समझ में आया, उसी को आपके सिलेबस का टॉपिक बोला गया है। इथिकल रीजनिंग आपको करने को आ गया, और इथिकल रीजनिंग करके आप मोरल डायलेमा सॉल्व कर पा रहे हो। तो ये बहुत कोर पार्ट है बुक का, बहुत आपको काम आएगा। नॉट ओनली इन यूनिट 3, एंटायर केस स्टडी का यूनिट सिर्फ इसी पार्ट पे, ओके। उसके अलावा गाइज, अब ये जो सारे थिंकर्स की मैंने बात की, वो थिंकर्स को काफी इजीली समझाने के लिए, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स थिंकर्स होते हैं फिलोसोफर्स को समझने के लिए, तो मैंने बहुत सारे फिलोसोफर को ऐसे चार्ट के फॉर्म में डाला है। फॉर एग्जांपल इमैनुअल कांत के लिए मैंने एक चार्ट बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट्स, अब चार्ट मैं अभी नहीं बता सकता, बट ऐसे बहुत सारे चार्ट्स है जिसके मदद से आपको फिलोसोफर को समझना काफी ईजी होगा। सो बुक में हर फिलोसोफर के लिए मैंने ऐसे चार्ट्स डाले हैं, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ये सारे फिलोसोफर। इसके अलावा गांधी के गाइज, गांधी जो हम पढ़ेंगे इसी सेक्शन में, अबाउट डिओंटोलॉजी में मैंने जो बताया आपको, 3 थिंकर है, कांत, गांधी और भगवद गीता, ओके। तो गांधी के बारे में मैंने बहुत सारी डिटेल में आइडिया डिस्कस किए बुक में। और 7 सोशल सिंस जो गांधी ने बात की थी, 7 डेंजर्स टू ह्यूमन वर्च्यू जो गांधी ने बात की, और रूट्स ऑफ वायलेंस, अलग अलग वर्ड है। आपके एमपीपीएससी के सिलेबस में 2-3 साल 4 साल जो एग्जाम हुए, 2-3 बार सिर्फ इसी सेगमेंट में क्वेश्चन पूछा है। इतना प्रेडिक्टेबल है, एमपीपीएससी हो या यूपीएससी भी हो। तो ये सारी जो गांधी की आइडियाज है, 7 सिन जो उन्होंने बात की थी, वेल्थ विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, बिजनेस विदाउट इथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया। काफी आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन आपको इसके ऊपर मिलेगी। फिर आता है आपका यूनिट 4, करप्शन का चैप्टर, ओके। अब देखना गाइज, सिलेबस क्या है करप्शन का, वो तो मैं 2 मिनट में डिस्कस करता हूं। लेकिन सी, जितना यूपीएससी या एमपीपीएससी है, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम, फॉरगेट इवन एमपीपीएससी यूपीपीएससी, बैंकिंग हो, कोई भी हो, अंडरस्टैंड ये एग्जाम को बोलते क्या है हम, कॉम्पिटिटिव। तो कंपटीशन मतलब क्या, कि आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है कि आपको 41% मार्क आ गए और डिग्री मिल गई और आपके दोस्त को 75 आ गए और यूनिवर्सिटी टॉपर बन गया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आपके दोस्त को अगर 45 आया है तो आपको 46 लाने सिलेक्ट होना है, तो और उसको 75 आया तो आपको 76। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू हैव टू राइट मोर देन अदर्स एंड यू हैव टू राइट बेटर देन अदर्स, तो अगर मार्क्स चाहिए तो अब इतना ही सोचो कि ये करप्शन का जो यूनिट है। अब जो बंदा प्रीलियम क्रैक करके आ रहा है मेंस लिखने के लिए, इतनी बेसिक चीज है करप्शन कि हर कोई उसका आंसर लिख सकता है। करप्शन के बारे में हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो, इधर उधर पढ़ रहे हो, तो फिर करप्शन पे जो क्वेश्चन आएगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा मार्क क्यों मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल टाइप्स ऑफ करप्शन, अब कौन नहीं बता सकता करप्शन के टाइप कौन से होते हैं। करप्शन क्यों हो रहा है, कॉजेस ऑफ करप्शन, कौन नहीं बता सकता कॉजेस ऑफ करप्शन। तो फिर आप जो मेंस के स्टूडेंट के साथ कंपीट कर रहे हो, आपको मार्क क्यों मिलेंगे, क्योंकि जब आपको और उसको सेम ही आंसर पता है और हर कोई कुछ ना कुछ लिख पाएगा। तो ऐसे यूनिट के लिए गाइज एक ही रूल मैटर करता है, अगर ऐसे इजी वाले टॉपिक है, इजी वाला क्वेश्चन है, देन हाउ मच मोर यू राइट। अगर दूसरा करप्शन के 5 टाइप लिखता है तो आप आंसर में 8 टाइप लिखो। अगर वो कॉजेज ऑफ करप्शन 10 लिखता है तो आप 12 लिखो, 13 लिखो। तो आप जो एक्स्ट्रा 2-3 लिख रहे हो ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 2-3 मार्क मिलेंगे। तो अगर आपको 20 मार्क का क्वेश्चन आया, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ करप्शन,
और बाकी आपके दोस्तों ने या जो मेंस दे रहे आपके कंप्यूटर, उन्होंने अगर 10 पॉइंटर लिखे तो उनको 10 मार्क मिलेंगे। आप 15 कॉजेस लिखो या इफेक्ट्स लिखो करप्शन के, आपको 15 मार्क मिलेंगे। तो इस चैप्टर में ज्यादा दिमाग नहीं है, सारा फैक्चुअल चैप्टर यूनिट है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें सिर्फ गेम है कितना आप ज्यादा लिखो, और जितना ज्यादा लिखना है गाइस तो आपके पास ज्यादा डेटा चाहिए। और इसलिए मेरे इस बुक में, इस यूनिट में गाइस आपको इतना डेटा मिलेगा। टाइप्स ऑफ करप्शन कम से कम आपको 20-25 मिलेंगे, कॉजेस ऑफ करप्शन 15-20 के ऊपर है, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन 15-20 के ऊपर है। ओके, इतने आपको पॉइंटर्स मिलेंगे, सारे मगअप करो और लिखो। ओके, यू डोंट हैव टू इवन थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, ओके, टू आंसर दिस यूनिट। ओके, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। देन हाउ टू मिनिमाइज करप्शन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और करप्शन, बहुत डिटेल में करप्शन कैसे मेजर किया जाता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, बहुत सारे मेथड्स, करप्शन के 8-10 मेथड्स दिए हैं मैंने करप्शन मेजर करने के। और उसके अलावा ट्रांसफर इंटरनेशनल वगैरह का जो रिपोर्ट्स, लोकपाल लोकायुक्ता वगैरह का काफी डिटेल में दिया है। ओके, तो यू डोंट हैव टू वरी गाइस, ये यूनिट बहुत बेसिक यूनिट है, बहुत फैक्चुअल यूनिट है। तो इसमें एक ही अप्रोच आपका होना चाहिए कि दूसरों से ज्यादा लिखना है, और दूसरे ज्यादा लिखना है तो ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ो, और पढ़नी है वो सारे आपको इस बुक में मिल जाएगी। ओके, उसके बाद लास्ट यूनिट जो है केस स्टडी। अब इसका कोई सिलेबस नहीं है, तो इस यूनिट का केस स्टडी का सिलेबस मतलब क्या कि आपने पहले 4 यूनिट में जो पढ़ा, स्पेशली 3rd यूनिट में इथिकल रीजनिंग, मोरल डायलेमा, जो अभी मैंने मेंशन किया था, वो सारा इंफॉर्मेशन यूज करके आपको ये यूनिट सॉल्व करना है। अब तो यूनिट 5 की स्टडी मतलब पहले चारों यूनिट में जो आपने स्टडी किया वही इंफॉर्मेशन की स्टडी है। लेकिन फिर भी टू मेक योर टास्क मोर इजी, केस स्टडी कैसे आंसर की जाती है या ये यूनिट का हैंडल करने के लिए मैंने पूरा आपको डिटेल दी है, केस स्टडी कैसे आंसर करनी है। और टू मेक इट मोर इजी मैंने बहुत सारे सैंपल केस स्टडी अलग अलग एरिया से, कंप्लीटली डाइवर्जेंट एरिया से आपको दिए बुक में। सारी केस स्टडी का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आंसर दिया है आपको। तो कौन कौन से एरिया से केस स्टडी है? ओके, बहुत अलग अलग एरिया है कि लार्जली गाइस आपको एमपीपीएससी जो केस स्टडी पूछेगा लार्जली इसी किसी एरिया से आएगी। तो आप ये सारी केस स्टडी मगअप करो अच्छे से, तो आपके पास इतना ज्यादा आंसर है। और एक्सक्लूसिवली मैं ये पॉइंट बताऊं कि मैंने उस यूनिट के हेडिंग में लिखा है कि ये केस स्टडी के आंसर में वर्ड लिमिट फॉलो नहीं किया गया। आपको वर्ड लिमिट में लिखना है, इसलिए मैंने फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत आंसर देना था आपको। इतना आंसर देना है कि आपने अगर वो केस स्टडी पढ़ के गए ना तो आपको कुछ ना कुछ चीजें जरूर याद आएगी और आप बहुत अच्छे आंसर लिख पाओगे। तो कौन कौन से एरिया से केस स्टडी है? आज के जो मेजर इश्यूज हैं हर लार्जर पे, उस पर मैंने केस स्टडी दी है, लाइक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, देन इंटरनेट ट्रोलिंग एटसेट्रा, सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को हैरेस करते, मीम क्रिएट करते एटसेट्रा। आईएएस ऑफिसर भी बहुत बार गलती से कुछ सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, उसके बाद इश्यू से बवाल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देन इथिकल एंड ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट वायलेशन की केस स्टडी भी डाली है मैंने। देन क्या कहते हैं, ड्रग टेस्टिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, उसकी केस स्टडी है। डिजास्टर मैनेजमेंट, उत्तराखंड जैसी ट्रेजेडी हो जाए या अभी जो फ्लैश फ्लड वगैरह हुए या कोई साइक्लोन आता है तो डिजास्टर कैसे मैनेज किया जाता है, उसकी केस स्टडी है। रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे, क्योंकि उस पर बहुत केस स्टडी रिपीटेटिवली यूपीएस ने पूछी है। कभी भी किस साल कहीं पे फ्लड होता है, कोई अर्थक्वेक होता है, कुछ भी होता है, अगले साल केस स्टडी आ ही जाती है। ओके, तो इस पे इतना डेटा दिया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की सारे पॉलिसी के रूल्स सब दिए हैं, सारे एक बार मगअप करके जाओ। डिजास्टर कोई भी हो, अर्थक्वेक की केस स्टडी हो या फ्लड की केस स्टडी हो या कोई दूसरी, आंसर सेम ही है आपका, वही सारा कुछ लिखना है। देन स्किन रेसिज्म, उस पर केस स्टडी है। अल्कोहल बैन, उस पर केस स्टडी है। ट्रांसजेंडर्स जो लोग हैं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, उनका बहुत अभी डिबेट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी लीगलाइज किया, तो ट्रांसजेंडर राइट्स के बारे में भी मैंने बहुत कुछ एक केस स्टडी में डिस्कस किया है। देन इवेंट एंड क्राउड मैनेजमेंट, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, डिप्टी कलेक्टर डीवाईएसपी बन गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमेशा करना पड़ता है लॉ एंड ऑर्डर। कुंभ मेला आ गया, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का ये पिलग्रिमेज आ गया, या फिर कहीं पे कोई रॉक शो है, कोई पॉलिटिकल रैली है, क्राउड मैनेजमेंट। बहुत इंडिया में स्टैम्पीड्स होते हैं, अभी वैष्णवी देवी के वहाँ पे स्टैम्पीड हुआ, तो क्राउड मैनेज कैसे की जाती है, इवेंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आईपीएल की मैच हो या पॉलिटिकल रैली हो, आपको ही काम वो करना है सब। तो उस पर भी बहुत बार केस स्टडी आ चुकी है, तो वो भी मैंने केस स्टडी डाली है। उसके अलावा रूरल अर्बन माइग्रेशन इंडिया का मेजर इशू है, लार्ज नंबर पीपल शिफ्टिंग टू फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, उसके कॉजेस क्या,
क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे हैंडल करना है, इसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, ये पूरी एक केस स्टडी मैंने डिस्कस की है अलॉन्ग विद ग्लोबलाइजेशन ऑफ विलेजेस। ओके, उसके बाद फॉरेस्ट फायर, ये भी है, कहीं पे आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर वगैरह, ऐसे इशू को कैसे डील करना है आप केस स्टडी में। देन हेल्थ केयर इंडस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अभी देखना प्राइवेट हेल्थ केयर इंडस्ट्री बहुत कॉस्टली बन चुकी है, गरीब लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कोरोना में जैसे इशू हुआ। ओके, तो उस पर केस स्टडी बन सकती है। तो गवर्नमेंट कौन सी स्कीम, आयुष्मान भारत वगैरह वगैरह ला रहा है, क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, वो मैंने डिस्कस किया है। देन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये भी एक केस स्टडी है। बहुत बार आईएएस आईपीएस ऑफिसर किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड लेते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं, क्योंकि वन ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यू जो आपके यूनिट 2 में मेंशन किया है सिविल सर्विस की, कि आप पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, लोग जिसको वोट करे आपको उसके ऑर्डर फॉलो करने। तो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने यूनिट 2 में एक्सप्लेन किया है। लेकिन उसके ऊपर केस स्टडी अगर आ जाती है तो आप क्या करोगे, वो भी मैंने डिस्कस किया है। देन दलित डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी, बहुत बार इस पे केस स्टडी बनती है, यूपीएससी में बहुत बार इस पे पूछे, एमपीपीएससी भी बहुत बार पूछेगा आगे जाके, कि किसी स्कूल में दलित कुक को अपॉइंट किया और हायर कास्ट ने अपने बच्चों को भेजना बंद किया, या कई दलित मंदिर में गया और फिर मंदिर धोया वगैरह, बहुत सारे आज न्यूज़पेपर में आप चीजें पढ़ते हो। केस स्टडी यूपीएससी उसी पे बनाता है, एग्जैक्टली अगले साल वो केस स्टडी आ जाएगी। ओके, सेम एमपीपीएससी वही करेगा, यही इशू आपको सॉल्व करने आईएएस आईपीएस बनने के बाद आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। ओके, तो वो दलित डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी की केस स्टडी। देन बिजनेस इथिक्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप एक कंपनी के एमडी सीईओ रतन टाटा जैसे, और कोई इथिकल डायलेमा हुआ तो आप कैसे हैंडल करोगे, तो उसकी भी एक केस स्टडी है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स, वर्क कल्चर, ओके, कि फूड हैबिट्स, इस तरह की एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी मैंने बनाई है कि एक कंपनी में लोग काम करें और वो मैनेजर को, आप मैनेजर हो और आपको बोलते हैं कि कैंटीन में नॉनवेज सर्व हो रहा है, वो बंद करो बिकॉज हम नॉनवेज नहीं खा रहे, और सो ऑन। तो इस केस में एज अ मैनेजर आप क्या करोगे। ओके, तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कैसे संभालना, क्या आपको वही काम करना है। अब जो कर्नाटक में इशू आप देख रहे हो जो चल रहा है, एज आईएएस आप वो कैसे हैंडल करोगे, लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स और वर्क कल्चर, ये कैसे। ओके, तो उस टाइप की एक केस स्टडी है। देन लीडरशिप स्टाइल, आप एक आईएएस हो और आपको ऑर्गेनाइजेशन लीड करनी है। बहुत बार यूपीएससी ने इस लाइन पे भी केस स्टडी पूछी है, तो मैंने वो भी ऐड की है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो और लोग ठीक से काम नहीं करते, टाइम पे नहीं आते, कस्टमर के बहुत प्रॉब्लम है कि कोई काम टाइम पे नहीं होता, तो आप कैसे चीज़ें इंप्लीमेंट करके चीज़ें काम पे करवाओगे, टाइम पे करवाओगे, उनका मोटिवेशन बढ़ाओगे। तो उसके लिए ये लीडरशिप स्टाइल, वर्क कल्चर की एक केस स्टडी मैंने डाली है कि सिटीजन चार्टर इंप्लीमेंट करो, परफॉर्मेंस अप्राइजल, तो बहुत सारे मैंने वहाँ पे सोल्यूशन दिए। देन जेंडर स्टीरियोटाइप, जो इंडिया का बहुत बड़ा इशू है, सेक्स रिलेटिव अबॉर्शन, सेक्स रिलेटिव डिटर्मिनेशन। ओके, लड़कियों के नंबर कम है कंपेयर टू लड़के पॉपुलेशन में वगैरह, तो उस रिलेटेड भी एक केस स्टडी है। फिर इंडिया का और एक इशू है सुपरस्टिशंस, या ये कि अंधश्रद्धा बहुत है इंडिया में, बहुत हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो आप किसी डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, डीवाईएसपी हो, और आपको कुछ ऐसी न्यूज़ पता चली कि वहाँ पे अंधश्रद्धा में ऐसे काम हो रहे, वैसे काम हो रहे, आप जाके क्या करोगे, कैसे हैंडल करोगे। ओके, तो उस पर रिलेटेड भी एक केस स्टडी है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन की भी केस स्टडी है। एंड मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब मोटिवेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एटसेट्रा। तो कम से कम गाइज 15-20 केस स्टडी मैंने डाली है पूरे आपके क्या कहते हैं उसे सिलेबस में। तो आपको इतना डेटा मिलेगा, लार्जली गाइज आपको जो भी केस स्टडीज आएंगी इसी एरिया से होगी, एंड मोस्ट ऑफ दैट फॉर्डर यू विल हैव टू राइट। तो पूरे यूनिट के केस स्टडी अच्छे से मगअप करो एंड यू विल बी एबल टू आंसर इट वेरी वेल। ओके, अब उसके बाद गाइज सो क्या क्या कवर किया है, आपको कॉम्प्रिहेंसिवली काफ़ी बताया। अब ये रहा था आपका 2090 का मेंस का एमपीपीएस का इथिक्स पेपर, जो अभी 4-5 महीने पहले हुआ। और ये जो मैंने बोला कि स्वतंत्रता सुखाए, तुलसीदास का क्वेश्चन, वो छोड़ के ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज फ्रॉम द बुक। ओके, आपके बहुत सारे एमपीपीएस के स्टूडेंट्स, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बुक फॉलो करते हैं, सबके मुझे कॉल आए, ओके, थैंकिंग कि सर सब कुछ कवर हुआ, ओके, कुछ भी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, एंड दे वर वेरी हैप्पी। सो वन थिंग मैंने पहले आपको बोली है, इस बुक में आपको जो डेटा मिलेगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सोर्स। ओके, पढ़ के जाओ एंड लार्जली कवर होगा। कोई बहुत और क्वेश्चन आ सकता है, ओके, उसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ऐसे और क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डरो मत, क्योंकि कोई बहुत और क्वेश्चन होता है तो किसी को भी आंसर नहीं करने आता, और आपको भी नहीं आया तो इट वोंट डैमेज यू। लेकिन अगर दूसरे कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आप नहीं कर पाए, तो वो डैमेज करता है। और इसलिए बुक में इतना डेटा मिलेगा, ओके,
कि हर कोई क्वेश्चन कवर होगा, एक आध और होगा तो कहीं पे भी नहीं होगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बहुत कोई और पूछा जाएगा तो, एंड यू विल गेट लॉट ऑफ फॉर्डर, लॉट ऑफ मटेरियल इन दिस क्वेश्चन. सो अब ये पेपर के सारे पॉइंट जो मैंने बोला था कि त्रिरत्ना की थ्योरी क्या है, प्लेटो की थ्योरी क्या है, ओके, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन इथिकल गाइडेंस क्या कॉन्सेप्ट, देन आपका अकाउंटेबिलिटीज जैसी टर्म्स, बहुत सारे, एवरीथिंग दैट हैज बीन आस्क्ड हियर गाइस. प्रतीत्य समुत्पाद, इंटरडिपेंडेंट कोओरिजिनेशन जो बुद्धा का थ्योरी है वो भी बुक में कवर थी. ओके, अब ये देखना, ये बहुत ऑड कॉन्सेप्ट है प्रतीत्य समुत्पाद. सिलेबस में कहीं सिर्फ बुद्धा लिखा है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट आई न्यू कि बुद्धा के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बुक में मैंने ऐड किया था और उस पर क्वेश्चन बना ही बना. ओके, तो बहुत सारे कि बुद्धा महावीर रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें है डालिए क्वेश्चन आएगा. ओके, तो उसी पे ही आएगा. ओके, सेम वे गाइस. सो इथिकल लीडरशिप, अब मैंने बोला आपको कि जो चार्ट दिखाया था मैंने बहुत सारे डायमेंशन का, इस साइड पे एक पॉइंटर था, तो मैंने लीडरशिप की 3 स्टाइल आंसर में लिखी है. स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, इनोवेटिव लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप. ये मैंने बुक में ऐड की थी, उसी पे भी क्वेश्चन आया कि लीडरशिप, व्हाट आर द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इथिकल लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन. कुछ भी दिमाग नहीं चलाना था, डायरेक्टली वो 3 पॉइंट्स लिखने थे, स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, इनोवेटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल, और उसका क्या आंसर है. ओके, और यही बोला कि लीडरशिप का रोल क्या है, तो आप नाइव आंसर नहीं लिख सकते कि मुझे लगता है लीडरशिप ये है. लिखोगे तो पेटी फिल करके 3-4 मार्क दे देंगे आपको. अगर आपको 1-2 मार्क दे देंगे, आउट ऑफ आउट मार्क चाहिए, 5 में से 4.5 मार्क चाहिए, 20 में से 15-16, तो ये कोर वर्ड लिखने कि आईएएस के लिए कौन सी लीडरशिप स्टाइल मैटर करती है. ही शुड बी स्ट्रैटेजिक. उसको पहले ही समझ में आना चाहिए डिसीजन कैसे फेल हो सकता है, कैसे सक्सीड हो सकता है, मैं क्या करूं. ट्रांसफॉर्मेशनल, उसको ऑर्गेनाइजेशन का नेचर बदलना आना चाहिए. ओके, एंड इनोवेटिव, अगर कोई नए नए इनोवेशंस लाओ ब्यूरोक्रेसी में. जो हम पहले सब्सिडी देते थे ब्यूरोक्रेसी में, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से जाती थी, ब्यूरोक्रेसी ने नया सॉल्यूशन लाया रघुराम राजन ने, आधार लिंक पेमेंट करे. ये चीजें आपको आनी चाहिए. इसी को बोला था इनोवेटिव लीडरशिप. आपका आंसर में ये लिखना है अगर आपको आउट ऑफ आउट मार्क चाहिए. ओके, तो वो भी सारा नोट्स में कवर था. ये आंसर लिखोगे बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको. ओके, सेम वे गाइस. सो अब पेपर में सारा डिटेल में नहीं जा सकता. सो टू कंक्लूड अबाउट दिस गाइज, जो बुक मैंने जो आपको प्रेजेंट किया था, तक्षशिला पब्लिकेशन का ये बुक है. सो बुक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑन इथिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, ऑथर मी एंड माय वाइफ, को ऑथर आईआरएस ऑफिसर मधुलिका कदम. ओके, और गाइज ये बुक जो है आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे भी ऑनलाइन अवेलेबल है. आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके गूगल पे भी आप टाइप करते हो अक्षय कदम इथिक्स फैकल्टी बुक, वो अमेजॉन की लिंक आ जाएगी. या फिर अमेजॉन में जाके भी आप टाइप करो अक्षय कदम इथिक्स फैकल्टी, ये बुक आपको आराम से दिख जाएगा, मिल जाएगा. ओके, और यहाँ पे मैंने डिटेल्स दिए. बुक नेम टेक्स्ट बुक ऑन इथिक्स, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. टाइटल ऑफ पब्लिकेशन इंदौर तक्षशिला पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड. ओके, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, वो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे है. आप तक्षशिला पब्लिकेशन की वेबसाइट भी विजिट करो, वहाँ पे ये बुक, उसके अलावा बाकी सारे भी जो बुक्स हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के बुक्स है गाइस, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी. और आपके क्विक एक्सेस के लिए मैंने यहाँ पे आपको अमेजॉन की ये लिंक भी यहाँ पे ऐड करके दी है. सो दैट्स ऑल guys. I hope you will order this book quickly and it will help you a lot in your examination. Best of luck guys and thanks for listening.